Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Rahmat Shah, the new lecturer of English for 10th class. We have been studying the first chapter of our English book, which is Unit 1, Chapter 1, page number 3 and lecture number 4. The title of the chapter is Simplicity and Humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We have talked about it in the previous paragraphs. We talked about how simple he was. He used to live a simple life. He was humble. He was not a spendthrift. He was not using money for things, or he was not using his assets for something which was not needed. So, and he had no money, he had no assets to leave for his children, and he was very helpful in his family. So he used to help his family members. So this is the next paragraph, and this is on page number 3. And page number 3, paragraph number 1 and line number 8. So we have to start it from here. I will read the paragraph as usual. You have to put your books in front of you, and you have to listen to me how do I pronounce the words. And while doing it, you have to underline the difficult words that you find. So let's start it. He is a pronoun that has been used for Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He also helped his companions in digging a trench by moving sand with them. Whenever he visited a person, he would first greet him and then take his permission to enter the house. He advised the people to follow this etiquette and not to get annoyed if anyone declined to give permission. For if it was quite likely the person concerned was busy otherwise and did not mean any disrespect. So this is the paragraph, and let's translate it and understand it. He also helped his companions. So in the previous paragraph we learned that he used to help his family members, and now he is telling us, the writer is telling us, that he was not only, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not only helping his family members, he was also helping his companions, his followers, his friends. So he used to, and I told you in the last lecture that used to is used for something, for a habit which was in the past. साबका माजी के आदात के बारे में इस्तेमाल किया जाता है. He also helped his companions. वो अपने साथियों की मदद भी करते थे in digging a trench by moving sand with them. Digging means, turnover. ज़मीन को खोदने को कहते हैं, और ट्रेंच कहते हैं खंदक को. Okay, this is a ditch. In English we call it ditch, and in Urdu we call it खंदक. He used to help his companions. तो उन्होंने जो है क्या कि उन्होंने अपने साथियों की मदद भी की एक खंदक की खुदाई में, by moving sand with them. उनके साथ मट्टी को वहाँ से हटाते हुए. उन्होंने अपने साथियों की मदद की खंदक खोदते हुए, वहाँ से मट्टी हटाते हुए. ये इसकी उर्दू हो जाएगी. Whenever he visited a person, he would first greet him. तो visited mean go to see. विजिट का मतलब होता है किसी जगह पे जाना, मगर यहाँ पे विजिटेड का मतलब होता है किसी से मिलने के लिए, just to meet somebody. So greet का मतलब होता है to say hello, किसी को सलाम दुआ करने के लिए. तो क्या करते, आगे इसको ट्रांसलेट करते हैं. कहता है कि whenever he visited a person, he would first greet him. जब वो किसी शख्स को मिलने जाते तो वो पहले सलाम करते. क्या करते? ग्रीट, से हेलो, और उर्दू में वैसे बोलते हैं सलाम. तो वो सबसे पहले सलाम करते. एंड देन टेक हिज परमिशन, उसकी इजाज़त लेते. ही वुड अलाउ, और अलाउंस जिसे हम कह सकते हैं कि वो उनसे उनकी इजाज़त लेते, किसी इजाज़त लेते. देन टेक हिज परमिशन टू एंटर द हाउस, और तब उनसे या उससे घर में दाखिले की
इजाज़त मांगते, यानी बगैर इजाज़त किसी के घर में दाखिल नहीं होते थे और जब किसी से मिलते तो सबसे पहले सलाम करते। इसको अगर हम इस सारी चीज़ को देख लें तो हमें ये बात समझ आती है कि वो किसी के लिए बेजा तकलीफ़ का वजह नहीं बनते थे, तकलीफ़ किसी को नहीं देते थे और इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। He advised the people to follow the etiquette। तो वो उन्होंने क्या किया, he advised। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ये वर्ब यूज हुआ है एडवाइज। एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं एडवाइस, ये वी प्रोनाउंस इट एज एडवाइस एंड दिस इज एडवाइज्ड, देयर इज साउंड एंड साउंड हियर। अब इनमें फर्क क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यू कैन सी दैट दिस इज अ वर्ब एंड दिस वन इज अ नाउन। अब नाउन और वर्ब कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, देखते हैं इसके। ही gave me an advice, तो क्या कहेंगे, उसने मुझे क्या की, नसीहत दी। जैसे अब इस उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें तो मतलब क्या कहते हैं, नाउन ही दिया जा सकता है। He gave me a pen, he gave me a marker, he gave me a chair। तो चेयर की जगह यहाँ पे क्या लग गया, हमारे पास एडवाइस, उसने मुझे नसीहत दी। उर्दू में ऐसे ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, मगर समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी को अगर हम लिखेंगे तो हम कहेंगे ही एडवाइज्ड मी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे हालांकि हमारे पास मेन वर्ब है और ये जो है हमारे पास क्या है जी, ऑब्जेक्ट है जो कि दिया जा रहा है किसी को, ठीक है, एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है और ये हमारे पास नाउन है और यहाँ पर हमारे पास जो है मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो आपने जो है अगर मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज विद एस। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो हम देखते हैं आगे। Not to and then take his permission to enter the house। यहाँ से हो गया था। He advised the people to follow this etiquette। He advised the people to follow this etiquette। etiquette हमारे पास जो है वो बोलते हैं प्रोटोकॉल को। प्रोटोकॉल को या इस तरतीब को या इन आदात को, और क्या कहते हैं यहाँ पे, He advised people to follow this etiquette। उन्होंने लोगों को इन आदाब की पैरवी करने की भी तलकीन की, नसीहत की, कहा उन्हें कि जो मैं कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं लोगों को तकलीफ नहीं दे रहा, जिस तरह मैं किसी के लिए तकलीफ का मौजब नहीं बन रहा, तुमने भी नहीं बनना। एंड नॉट टू गेट annoyed। और हमारे पास यहाँ पे वर्ड है annoyed। annoyed हमारे पास एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है bothered, to bother someone, किसी को तकलीफ में डालना, ठीक है। एंड नॉट टू गेट annoyed। नॉट टू गेट annoyed यानी खफा भी नहीं होना, नाराज भी नहीं होना, गमज़दा भी नहीं होना। इफ एनीवन डिक्लाइन टू गिव परमिशन। डिक्लाइन मीन यहाँ पे हमारे पास है रिफ्यूज्ड, टर्न डाउन। आपने किसी से मदद मांगी, यू आस्क समवन टू अलाउ यू टू गो टू हिज हाउस एंड ही रिफ्यूजेस or he refused, do not bother yourself, do not get annoyed, ठीक है। इसको माइंड ना करें, do not mind it। why? There is a reason he is, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is telling us। anyone declined to give permission, okay। so यहाँ पे permission, for it was quite likely। यहाँ पे हमारे पास है QUITE, quite, this is quite। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी होता है QUIET, quite। एक ये हमारे पास, ये हमारे पास ये क्वाइट जो हमारे पास ये है एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है जी, क्वाइट। और ये हमारे पास ये भी क्वाइट है, मगर ये हमारे पास जिसे यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, अच्छा खासा, क्वाइट जैसे कहते हैं काफ़ी। और ये चीज़ जो यहाँ यूज किया जाता है वो साइलेंस या फिर लो वॉइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कीप साइलेंस। तो ये क्वाइट उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खामोशी के लिए या आहिस्ता बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये काफ़ी अच्छा खासे के लिए यूज़ किया जाता है। और फिर आगे हमारे पास वर्ड आ जाता है लाइकली। लाइकली का मतलब होता है गुड चांसेस, यानी ज़्यादा मुमकिन है। मुमकिन है क्या है यहाँ पे, क्वाइट लाइकली द पर्सन कंसर्न। यहाँ पे हमारे पास एक कंसर्न का मतलब वैसे होता है वरी,
गमज़दा खौफज़दा। मगर यहाँ पे हमारे पास इस सेंटेंस में इसका मतलब हम लेंगे मुताल्लिक़ा शख्स, जिसके साथ इस मामले का ताल्लुक़, द वन हु इज़ रिलेटेड टू दिस अफेयर। तो कहता है कि ये ज़्यादा मुमकिन है कि वो शख्स, इससे मुताल्लिक़ा शख्स वॉज बिज़ी, कि वो शायद वो मसरूफ़ हो, अदरवाइज या फिर एंड डिड नॉट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट, और वो आपकी कोई बेइज्जती नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहता था। तो इस पैराग्राफ में हमने ये सीखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया है कि आप अगर किसी के घर जाएं तो उनकी इजाज़त दें, आप किसी से मिलें तो आप उनसे पहले सलाम करें, और अगर कोई आपको रिफ्यूज़ कर दे तो उसकी मजबूरी को समझकर आप जो है नाराज़ ना। तो ये है आज का हमारा लेसन। तो मज़ीद आगे पढ़ने के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय फॉर नाउ।